Dear friends, we want to praise the Lord for this time that He has given to us. प्रिय मित्रों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये समय, ये अवसर जो प्रभु हमें देता है, ये बेशकीमती है। आज के दिन, आज 17 जुलाई का दिन है और हम सब मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि प्रभु के वचन का अध्ययन करें। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन में। और मेरी आशा है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे ध्यान को हम एकत्रित करें, एक चित्त करें और अपने ध्यान को प्रभु में लगाएं, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारे मनस्पटल पर बना रहे। Dear friends, I urge all of you who are participating in this Bible study, and I have been informed and I have come to know that many people who are even not of our Apostle Methodist Church but are living in various parts in this land are participating in this Bible study, and I am delighted to know this. And also I will appreciate if you so feel and are led by the Lord, you can also forward this Bible study to our Methodist churches so that they also may learn from the Word of God and learn together. Dear friends, as I have already said that nowadays at this time of crisis of pandemic or COVID-19, there are many churches who are having their worship by link or by Zoom, and so I encourage you, if you have time, if you have spare time or extra time, apart from this Bible study and Sunday worship, you may also join them and thus study the Word of God, because this is the Word of God, the same Word of God. And listen to every possible people you want to listen, because today, since last couple of months, many people have started their Bible study, regular Bible study on different books of the Bible, in the Bible, and they are taking the Bible study, conducting Bible study. So as a pastor of yours, of Apostle Methodist Church, I also encourage you to take time of your busy schedule and participate in these Bible studies. This will boost your spiritual knowledge and give you insight from the Holy Word of God. And I personally thank God for each one who is conducting the Bible study, and maybe a pastor, maybe evangelist or missionary or anyone, Bible teachers, scholars, and may God bless them. So this Bible study may continue to lead us and make us to follow Christ faithfully, sincerely, and let we continue to grow and become strong in the Lord's Word and His knowledge, in and through, by the help of the blessed Holy Spirit. Let's pray. आज हम प्रार्थना करें, आज के बाइबल अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु, जो आज हम करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमारी मदद करें, ताकि हम इन विषयों को प्रभु बहुत ही गहराई से सीखें प्रभु, और इसमें बढ़ने वाले बन सकें। हमारे हर एक सुनने वालों पर, बाइबल अध्ययन करने वालों पर, कलीसिया के अगुओं पर, कलीसिया के सदस्यों पर, विश्वासियों पर और सत्य के खोजियों पर प्रभु आपके आशीष पाया जाए। हे प्रभु, आज भी आप हमसे बातचीत करें। हम अपने आप को आपके हाथों में खोलते चाहते प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी मदद करे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, today the study where we are going to have is also found in Galatians chapter 3 verses 19 onwards, 19 to 29। गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 19 पद से हम देखेंगे 29 पद तक।
और मैं चाहूँगा कि इन बहुत ही बेशकीमती विचारों को अपने हृदय के अंदर रखें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारी कलीसिया के लिए सैद्धांतिक बातें हैं. We are studying some of the very important doctrines, and I don't want to make very hard for us. I have used some of the very simple terms to explain to you about these doctrinal things in our Christian life. Dear friends, also you need to remember that many times I explain to you in Hindi and sometime in English also, but there are some important references also which I'm not reading very elaborately, but when you have time in your home or in your place of living, you can take some time and read this verse, because by reading this verse you will know the authenticity of the word that I am explaining here. Now we read here in this study. Yesterday we saw the last thing that we saw was the fifth point, which is found in Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 17 and 18. हम देखते हैं, हमारे आज के कल के पाठ में हमने देखा था गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, उसके 17-18 में लिखा है, पर पौलुस कहते हैं, पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे. अब इस बात को आपने कल देखा था और हमने कल देखा था. आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था की बात पौलुस कहते हैं, वो व्यवस्था परमेश्वर ने उस समय ठहराई थी जब ये लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे. जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे. परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था और अब्राहम के द्वारा उसने प्रतिज्ञा दी थी कि तेरे कारण संसार का हर एक कुल आशीष पाएगा. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आगे पढ़ते हैं 15 अध्याय में और बाकी अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना. और कालांतर में उसके लगभग 2000 साल बाद यीशु मसीह का आगमन हुआ और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरी करते हुए नई व्यवस्था को लागू करा. लेकिन उसके 1000 साल पहले जब ये लोग, या 1500 साल पहले जब ये लोग मिस्र की गुलामी से आए, तो प्रभु ने जंगल में सीने पर्वत से उनकी व्यवस्था दी और 10 आज्ञाएं दी. और 10 आज्ञाओं के द्वारा इंसान के जीवन का वो मापदंड है जिससे हमारे पापों की पहचान होती है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना. और इसलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को साफ कहते हैं कि ये व्यवस्था जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, यानी उसने अब्राहम के सामने इस वाचा को पक्की की थी, और उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे. परमेश्वर ने जो व्यवस्था इस्राएलियों को दी, पर जो उसके पहले प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की थी, उस व्यवस्था का आने से वो प्रतिज्ञाएं नल एंड वाइड नहीं हुई, वो मजबूत की गई. इस बात को जानने की आवश्यकता. 18 पद में लिखा है, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली तो फिर प्रतिज्ञा नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी थी. जो मिरास की बात हुई, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि ये प्रतिज्ञा कि मैं तेरे वंश को दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, तू आशीष का कारण होगा. लेकिन जो व्यवस्था थी वो इस्राएलियों को दी गई जब वो मिस्र से निकल करके कनान की तरफ जा रहे थे. उससे काफ़ी बाद व्यवस्था को दी गई. व्यवस्था से पाप की पहचान होती है, लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उनको अब्राहम के द्वारा व्यवस्था के आने से वो पूरी हो जाती है. प्रतिज्ञा समाप्त नहीं हो गई, लेकिन व्यवस्था उसको मजबूत करती है, क्योंकि ये उसके लोग हैं व्यवस्था के अधीन. और आगे चल के यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नई व्यवस्था देता हूँ, जिस पर हम थोड़ी देर के बाद गौर करेंगे. अब हम आगे आते हैं. लिखा है पहली बात,
19 पद में 30वें अध्याय का, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। अब यहाँ पर इस बात को देखने की आवश्यकता है व्यवस्था के बारे में। और आज मैं आपके सामने यहाँ से इसके संदर्भ में कुछ बातों का वर्णन करूँगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। पवित्र बाइबल में अगर हम देखें तो कम से कम 6 प्रकार की व्यवस्था का वर्णन पाया जाता है। केवल मैं आपके जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म यू दैट वी रीड अबाउट 6 टाइप ऑफ कवनेंट। नंबर 1 जो अदन की वाटिका में दी गई, इसको कहते हैं एडेनिक कवनेंट। एडेनिक कवनेंट जिसका वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 28 से 30 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 28 से 30, जहाँ पर परमेश्वर उन आदम और हवा को ये आज्ञा देता है कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और इस संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करो, संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करो। दूसरी हम पाते हैं नोहिक कवनेंट। परमेश्वर ने नूह के समय उसने संसार को जल से समाप्त कर दिया और सब कुछ समाप्त हो गया, केवल 8 प्राणी बचे। गॉड डिस्ट्रॉयड the whole world because of the flood at the time of Noah, and only his family was saved, about 8 people. इसलिए इसको नोहिक कवनेंट कहा गया है, जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं अब पृथ्वी को कभी भी जल से नाश नहीं करूँगा। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 8 से 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बात को आप देख सकते हैं, उत्पत्ति 9 अध्याय 8 से 17। फिर हम पाते हैं अब्राहमिक कवनेंट। अब्राहमिक कवनेंट, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 12 अध्याय के अंदर कि अब्राहम अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा। और वो लिखा है, हम पाते हैं इसका पूरा वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति के 12 अध्याय से 17 अध्याय तक। और खास करके उसको विश्वासियों का पिता कहा, उसके विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया गया और परमेश्वर ने उसको वाचा दी। उसका वर्णन पाते उत्पत्ति 15 अध्याय 18 से 21, जेनेसिस 15 चैप्टर 18 to 21। उसने कहा, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने कहा, उस प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर ने कहा, उस कवनेंट के अनुसार ईश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तेरे वंश को, तेरे सीड को, जो तेरा अपना वंश होगा, संसार का आशीष बनाऊंगा। बोथ नेचुरल बर्थ एंड बाय एडॉप्शन। नेचुरल बर्थ का मतलब है जो तेरे शरीर से तेरा जो बीज है, यानी इसहाक, याकूब और बाकी और सारे लोग जो इस्राएल जाति के नेचुरल वंशज हैं। और एडॉप्शन यानी आगे चल करके जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके विश्वास के कारण वो अब्राहम के वंश में हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 2 बातें पाई जाती हैं जो अब्राहम को वाचा दी गई कि तेरा वंश, तेरे परिवार के लोग, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो आएंगे उस नई वाचा के देने पर विश्वास करेंगे, वे सब आत्मिक रूप से तेरे परिवार में, तेरे वंश में शामिल हो जाएंगे। और उसके लिए चिन्ह दिया गया, वो चिन्ह था सर्कमसीजन या खतना। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका 9 से 14 पद में इस बात को समझाया गया है। उत्पत्ति 17 अध्याय 9 से 14 पद में इसको समझाया गया। इसलिए इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। फिर हम आगे आते हैं, चौथी बात जो है, चौथी वाचा जो है वह है मोज़ाइक कवनेंट। मोज़ाइक कवनेंट, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल जाति को, जब वो मिस्र से निकल करके कनान देश की तरफ जा रहे थे, तो सीनै पर्वत से उसने उनसे वाचा बांधी और उनको 10 आज्ञाएं दी। उत्पत्ति के बारे में इसको पढ़ते हैं और ख़ास करके हम इसको पढ़ते हैं निर्गमन के 19 से लेकर 24 अध्याय तक इसका वर्णन किया गया। दी मोज़ाइक कवनेंट का परमेश्वर ने उनको वाचा दी, उनको 10 आज्ञाएं दी और साथ ही साथ उसने सब्बात या विश्राम दिन के बारे में आज्ञा दी कि तुम इसको मानते रहना,
जो उस कवरेंट के संदर्भ में था, जहाँ इसको हम पढ़ते हैं निर्गमन 31 अध्याय 12 से 17 पद। निर्गमन 31 अध्याय 12 से 17। उसके बाद 5वीं वाचा के बारे में पढ़ते हुआ है डेविडिक कवनेंट। परमेश्वर ने दाऊद को वाचा दी कि तेरा जो सिंहासन है वो अनंत काल तक बना रहेगा। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय के अंदर इसका वर्णन किया गया कि तेरी जो राजगद्दी, दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि तेरी जो राजगद्दी है वो अनंत काल तक बना रहेगा। और फिर हम 6वीं बात पढ़ते हैं प्रीस्टली कवनेंट। प्रीस्टली कवनेंट, और ये जो कवनेंट है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो कवनेंट था कि आगे चल के एक महायाजक हो जो खुद ही अपने आप को दे देगा और जो उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। इब्रानी में इसको कहा गया है बेरित हा केहुना, बेरित हा केहुना। और यह है प्रीस्टली कवनेंट जो परमेश्वर ने लोगों के साथ बांधी, और उसके तहत हम सब उस परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद हम पाते हैं जो 7वां है वो है न्यू कवनेंट, नई वाचा, और जिसके बारे में कुछ पद हैं जिसको आज मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने यहाँ पर, ताकि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है इन 7 वाचाओं के बारे में। अगर अब मेरे साथ देख लें उत्पत्ति यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय जहाँ परमेश्वर ये वाचा देता है। और ये काफ़ी लंबा पाठ है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, पर थोड़ा सा निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 पद से अगर देखें आप, तो यहाँ पर परमेश्वर उस नए कवनेंट की बात करते हैं, नई वाचा की बात करते हैं पुराने नियम में अपने नबी यिर्मयाह के द्वारा, जो आगे चल के यीशु मसीह ने दोहराया। अगर आप पढ़ें इसके बारे में आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 26 पद को इसको पढ़ सकते बाद में, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 26। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इसकी वाचा बांधी, और उसने कहा अपने नबी यिर्मयाह के द्वारा कि मैं वाचा बांधूंगा। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 21 पद से 34 पद तक। फिर यहोवा की वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूंगा। उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अब ये निश्चित रूप से उनके उस यात्रा का वर्णन है जिसके लिए उनको करीब 40 साल लग गए। उस 430 साल के गुलामी के बाद 40 साल की यात्रा, जहाँ परमेश्वर ने सीनै पर्वत से उसने उनको वाचा दी। और सीनै पर्वत में परमेश्वर मूसा से बात करता था और स्वयं उसने 10 आज्ञाओं का वर्णन करा, और हम इस बारे में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ। वो उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। अब परमेश्वर यहाँ पर अपने वाचा के बारे में कहता है, बिहोल्ड द डेज आर कमिंग डिक्लेयर्स द लॉर्ड, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I had made with their fathers on the day when I took them by the hands to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke though I was their husband, declares the Lord. अब यहाँ पर परमेश्वर कहता है वो उस वाचा के समान ना था जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, और जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी वाचा उनके मन में समाऊंगा। आई विल राइट डाउन माई कवनेंट इन देयर हार्ट्स, आई विल राइट इट ऑन देयर हार्ट्स। मैं उनके हृदय के अंदर वाचा लिखूंगा, नई वाचा जो, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, अब मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक बार ये कहना ना पड़ेगा
कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। एंड he says here, verse 34 and 34 of Jeremiah 31, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. तो ये वाचा परमेश्वर ने बांधने के लिए नई वाचा के बारे में उसने नबी यिर्मयाह को बता दिया कि अब ये वाचा जो मैं बांधने वाला हूँ, ये उनके हृदय के साथ बांधूंगा, मन को बदल दूंगा। और यीशु मसीह ने वही काम तो करा आकर के। उसने उस वाचा को जो मूसा की थी, पुरानी वाचा थी, पूरा करा। और उसने कहा, मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, वाचा को लोप करने नहीं आया। मैं आया हूं कि पुरानी वाचा को पूरा करूं, क्योंकि मेरी मृत्यु के द्वारा नई वाचा की शुरुआत होती है। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं या करेंगे, उनका हृदय बदल जाएगा, वे नई सृष्टि बन जाएंगे। आई थिंक दिस नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। और पौलुस यहाँ पर यही तो कहते हैं, वो साफ साफ वो कहते हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं, मध्यस्थ तो एक का नहीं परंतु परमेश्वर एक ही है। और इस वाचा का जो मध्यस्थ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से ये वाचा दी गई अलग अलग समय पर लोगों को, लेकिन जो परमेश्वर है, जो नई वाचा का देने वाला है, पुरानी वाचा भी उसने दी अलग अलग माध्यमों से, अब नई वाचा के लिए खुद इस संसार में आ गया। टू इनिशिएट द न्यू कवनेंट, टू फुलफिल द न्यू कवनेंट, ही हिमसेल्फ बिकेम ह्यूमन बीइंग। वो जो सारे ब्रह्मांड का, सारे कायनात का बनाने वाला है, नई वाचा को देने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, और वो इंसान के मनों में लिखने के लिए वो इंसान बन गया। तभी तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। By virtue of his coming to this world, fulfills the initiate and fulfill the new covenant. तब तो प्रभु यीशु मसीह जब वो पकड़वा जाने वाले थे, और पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थी के 11 अध्याय के 26 पद आगे कहते हैं कि उस रात जब वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़कर कहा कि ये मेरी देह है। और इसके बाद उसने प्याला लिया, कप लिया और कहा ये प्याला, उसमें दाखरस होगा, जो भी वो पीते थे इन दिनों में, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन क्राइस्ट, you are his son and daughter by virtue of the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. And this is very important and wonderful thought from the Bible, an eternal thought, revelation of God, that anyone who is in Christ, he becomes a new creation. हम नए लोग बन जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और परमेश्वर हमें अपने परिवार का सदस्य बना लेता है, हमें परिवार में शामिल करता है। अब तीसरी बात यहाँ देखते हैं, 21 पद में लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अब इसको समझ लीजिए। 21, is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. तो यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस क्या कहते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। तो क्या व्यवस्था जो परमेश्वर ने अलग अलग समय में दी, अलग अलग माध्यमों से दी, और अपने आप पहाड़ पर उतरकर, सीने पर्वत पर उतरकर वो बोलने लगा अपने लोगों से जो इस्राएल जाति के लोग थे, और वहाँ उसने 10 आज्ञाओं का वर्णन करा पुरानी वाचा के तहत। क्या ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? जी नहीं। उसके
व्यवस्था के दिए जाने से उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो मजबूत होती हैं। यहाँ लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि यदि व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अब ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी उससे जीवन हमें नहीं मिलता, वो हमारे लिए गाइडलाइन है। जीवन तो परमेश्वर खुद देता है, और यीशु मसीह के रूप में संसार में जीवन देने तो आया। उसने कहा कि मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आज से पाओ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु जीवन देने आया। व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों की पहचान होती है। व्यवस्था के पहले प्रतिज्ञाएं दी गई। व्यवस्था के दिए जाने से प्रतिज्ञाएं जो है मजबूत होती हैं, खत्म नहीं होती हैं। और उस प्रतिज्ञा को पूरा कौन करता? हु फुलफिल्स द प्रॉमिस, द इटर्नल प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट ही गेव, that Abraham, because of your seed, the entire world will be blessed in and through Jesus Christ. जो नई व्यवस्था है, जीवन जो है उसके द्वारा संभव है। तो पौलुस कहते हैं तो क्या व्यवस्था परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि व्यवस्था से पापों की पहचान होती है और जीवन का देने वाला परमेश्वर है। उस पर विश्वास करने के द्वारा वी रिसीव द लाइफ इटर्नल, नॉट थ्रू फुलफिलिंग द लॉ, बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग कैन फुल every law except Jesus Christ, who was in the same time was God and human being. मनुष्य प्राणी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और परमेश्वर का जो नियम है वो बहुत ज़्यादा सटीक है, बारीक है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अदृश्य भी अदृश्य भी। इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम व्यवस्था को मानने पर घमंड करते हैं और हम सोचते कि इस द्वारा हमें जीवन मिलेगा, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि ये गलत विचार है। जीवन का आगमन जीवन से होता है। वो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। चौथी बात हम देखें, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। इसको हमें जानने की आवश्यकता है। Verse 22 says, "But the scriptures imprisoned everything under sin, so that the promises by faith in Jesus Christ might be given to those who believed." अब इसको हम समझे अच्छे से, क्योंकि हमारे विश्वास का आधार है। What he says here, परंतु पवित्र शास्त्र, द होली स्क्रिप्चर, द बाइबल ने सबको पाप का अधीन कर दिया। बाइबल में लिखा है ना, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही पढ़ते हैं ना। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है बाइबल को छोड़ जो इंसान को पापी ठहराती है। अलग अलग विचारधारा, हम उन सबका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उन शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बाइबल एक पुस्तक है जहां पर लिखा गया है कि सब ने पाप किया है। Everyone has committed sin और he has come short of the glory of God. उस महिमा से वो निकाल दिया गया है। अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, जो एक रूपक है हमारे सामने। सृष्टि के बाद आदम हवा को परमेश्वर ने निकाल दिया। और ठीक यही कार्य होता है, पाप के कारण मनुष्य प्राणी ईश्वर की संगति से निकाल दिया गया। लेकिन एक पद और है, अगर रोमियो 3:23 है तो रोमियो 6:23 भी है। वहाँ लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन ईश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसके लिए? उस पापी के लिए। द सिनर रिसीव्स, he is accepted or she is accepted or she is grafted or he is grafted into the family of God, not because of his good work, not because he is fulfilling the law of God, but because with all sincerity, all humility, he comes to God and say, Lord, forgive me, I need you. Jesus, forgive me, I need you.
Forgive me, Lord, and you sprinkle your holy blood in my life. And I told you a spiritual couple of days ago that spiritually our heart are operated by God. That artist we have in our physical body, which pumps our blood into the heart and it goes out the whole body. Literally it is not possible, but spiritually when a person commit his or her life, जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपता है तो मानव विश्वास से हम प्रभु के उस लहू को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और वो हमारे आर्टिस्ट में उस लहू को बहाता है और हमें आत्मिक रूप से जीवित बना देता है. We come alive who were dead in our sins, alive in Jesus and become his children, and then our names are written in heaven. और मैंने आपको बताया था वो लिखा है, कहाँ लिखा है? लूका के सुसमाचार के 10 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि तुम इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं. Now what does it mean? There's another meaning here, that a person, he doesn't enter into the kingdom of God after he pass away from this world. एक मनुष्य जब इस संसार से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाता. वो तो उसके आत्मा का, उसके प्राण का शरीर से अलगाव है. तो कब जाता है? जब वो जीवित रहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है. जब वो जीवित रहता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और उसका नाम वहाँ लिख जाता है. और मैंने आपको बात कहा था, आप इस बात को याद रखिएगा. यिर्मयाह के 17 अध्याय के 13 पद को पढ़ लीजिएगा. वहाँ लिखा है कि जो इस्राएल के पवित्र को पवित्र नहीं मानते हैं, यिर्मयाह 17:13, उनके नाम जमीन पर लिखे गए. इसको देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा. लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं वो धन्य है, उससे उनका आनंदित होने की आवश्यकता है कि उनके नाम स्वर्ग में लिखे गए. यहाँ से काटा 2 जगह नाम नहीं हो सकता. परमेश्वर किसी का पक्षपात भी नहीं करता कि भाई यहाँ भी लिख दे, वहाँ भी लिख दे. अगर तू वहाँ की जरूरत है तो वहाँ पहुँचा देगा, या यहाँ रहेगा तो नहीं. नहीं. इधर माई नेम इज हियर और माई नेम इज देयर. If I don't accept the plan of salvation for my life, I'll remain in this world. और वहाँ लिखा कि तुम्हारे नाम इस पृथ्वी पर लिखे जाएंगे और फिर अधोलोक में मैं पहुँच जाऊँगा न्याय के दिन. लेकिन अगर उस नाम को प्रभु ने यहाँ से काट दिया तो प्रभु किस लिए काटता है? मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, या मेरे ज्ञान के कारण नहीं, मेरी भक्ति के कारण नहीं, मेरी आराधना के कारण नहीं, मेरे द्वारा किसी और ऐसे काम करने के दौरान नहीं, पर वो क्यों काटता है मेरे नाम को इस पृथ्वी पर से? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर. और इसके लिए पतरस भी कहता है कि उस अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारे हृदय के अंदर नयापन आ गया. अब पौलुस कहता है अब यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई. तो हम उसके राज्य में, उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं हमारे उस विश्वास के कारण जब यीशु मसीह पर करते हैं. 5वीं बात, 23 पद, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे. व्यवस्था जो है वो हमें पाप के अधीन बनाए रखता है. विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी का अधीन बने रहे. व्यवस्था दी गई ना इस्राएल जाति को, और व्यवस्था के अधीन बहुत सी बातें दी गई. अगर आप व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे, खासकर जो मिलाप वाले तम्बू की बात है, तो वहाँ पर सेरेमोनियल लॉज दिए गए कि उनको कैसे आराधना करना है, कैसे बलिदान चढ़ाना है, कैसे पवित्र स्थान में उनको भेंट की रोटियां और बाकी चीज़ें चढ़ानी, और फिर महापवित्र स्थान में जहाँ वाचा का संदूक होता था वहाँ किस प्रकार से महाराज 1 साल में एक बार जाता था, और वो उस होम बलि के लहू को लेकर, उस जानवर के लहू को लेकर साल में एक बार जाके महाप्रायश्चित के दिन वहाँ उसको छिड़कता था. दिस वर ऑल द सेरेमोनियल लॉस. लेकिन यहाँ अगर आप देखें इब्रानियों की पुस्तक में तो पौलुस लेखक कहता है कि वो एक ही बार वहाँ गया और उसने अपने आप को दे दिया और हमारा प्रायश्चित उसने दे दिया. इसलिए वो हमारा महायाजक है. आज भी स्वर्गीय स्थान में हमारे लिए प्रार्थना करता.
अब ये अलग विषय है, बाद में हम इसको देखेंगे कभी अगर प्रभु ने मौका दिया। इब्रानी की पुस्तक अध्ययन हम करेंगे सिलसिलेवार रूप से। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, नाउ बिफोर फेथ केम वी वर हेल्ड कैप्टिव अंडर द लॉ, imprisoned until the coming of faith would be revealed. How the faith came? In and through Jesus. यीशु मसीह के आने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद विश्वास आ गया। और इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है ना, विश्वास क्या है? परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अगर आप इस बात को देखें तो बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे बाइबल में और बाइबल के बाहर भी, कि जिन्होंने अंत समय में उपवास पश्चाताप करा, स्वर्ग राज्य में पहुंच गए। वो व्यक्ति जो बलवा करने वाला था, जिसको यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, बाईं तरफ था, उसने कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा कि आज ही, क्योंकि यहाँ जीवन टंग रहा है क्रूस पर, तो जीवन से बात कर रहा है, और वो जीवन तुझे अधिकार देता है कि अब तेरा नाम जो पृथ्वी पर लिखा था अब स्वर्ग में लिख दिया गया, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दिस इज गुड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज माय फ्रेंड। डू यू थिंक दैट यू हैव दैट गुड न्यूज इन योर लाइफ, दैट योर नेम इज रिटन इन हेवन? इफ इट इज सो, यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हैं। छठवीं बात 25 पद में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक का दिन ना रहे। शिक्षक कौन है? व्यवस्था। अब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक का दिन ना रहे। अब ये पौलुस जो लिख रहा है वो उस व्यवस्था का डॉक्टर था, वो व्यवस्था को अच्छे समझता था, और व्यवस्था के ने उसके मन को, आंखों को इतना अंधा कर दिया था। वो कहता था कि ये जो यीशु मसीह के लोग हैं कुपंथ के लोग हैं, और उनको मारना चाहता था, उनको समाप्त करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दमिश्क के मार्ग में उसकी आंखें खुल गई, शारीरिक आंखें अंधी हो गई, मन की आंखें खुल गई, अब वो व्यवस्था को छोड़ करके उसने कहा इसको तो प्रभु ने पूरा कर दिया। अब वो नई व्यवस्था के वर्णन करने लगा, और वही लिखता है 1 कुरिन्थी के 11 अध्याय के 23 पद में आगे कि यीशु ने कहा, ये नई वाचा है मेरा लहू, जो तुम्हारे अब बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता। तो जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक का अधीन ना रहे। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर पूरा करना आया हूं। क्योंकि 26 पद, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। व्यवस्था के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति ईश्वर का संतान नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो इस्राएल लोग ही जाते स्वर्ग में, इस्राएल जाति के लोग ही जाते, हम तो बाहर रह जाते। क्योंकि वो प्रतिज्ञा जो दी गई थी, वो प्रॉमिस जो दी गई थी, इब्राहिम को लिखा, प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है, हे अब्राम, और अब्राम का नाम का मतलब आप जानते, मैंने बताया था, श्रेष्ठ पिता, और उसका नाम बाद में बदल दिया गया इब्राहिम, उसका मतलब होता है जातियों का पिता। हे जातियों के पिता, तू दुनिया के हर जाति के लिए आशीष का कारण होगा। और कैसे होगा? जब मैं इस दुनिया में आ जाऊंगा उद्धारकर्ता के रूप में, और मैं जब अपने प्राण को दे दूंगा, और जो उस पर विश्वास करेंगे वो उसके अधिकारी हो जाएंगे। और इसलिए हर एक विश्वासी आज विश्वास के आधार पर इब्राहिम के आत्मिक संतान है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। आखिरी बात, 7वीं बात 27 पद में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। जिन्होंने मसीह पर का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। पौलुस कहता ना कि मैं उसको जानूं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, मैं क्रूस के साथ, क्रूस में चढ़ाया गया मसीह के साथ, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। ये सारी बातों का अर्थ वही है कि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन जाता है, तो हम उसमें अपने आप को ढांप लेते हैं, उसकी धार्मिकता हमें सुशोभित करने लगती है, हमारी जो पहचान है मसीही हो जाता है। लिखा है अंतःक्रिया के अंदर पहली बार लोगों ने कहा कि उस पंथ के लोग ये मसीह लोग हैं, क्योंकि ये मसीह के लोग हैं। Who is a Christian who belongs to Jesus Christ, who is a disciple of Jesus Christ। और यहाँ लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्हें मसीह को पहन लिया है।
अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हमारी एक पहचान हो जाती है और हमारी पहचान देह के रूप में होती है। द चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द हेड इज जीसस क्राइस्ट। हम उसके शरीर का अंग हो जाते हैं, आत्मिक। इसी को लेने के लिए तो आ रहा है वो जो है, जो हमारा मुखिया, वो आने वाला है लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। द्वितीय आगमन की इसलिए तो महिमा, इसको महिमान्वित किया क्या गया। इट हैज बीन ग्लोरीफाइड द सेकंड कमिंग, वी नीड टू बी रिजॉइसिंग। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं कि साहब ये होगा और वो होगा और ये होगा। ये नहीं, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हमारे लिए आनंद का विषय है कि इस दुनिया के तमाम क्लेश से, इस दुनिया के तमाम परेशानियों से, इन बीमारियों से, तकलीफ से आज़ाद हो जाएंगे। Let us wait with jubilation. Let us prepare ourselves as these 5 virgins were ready to receive the bridegroom. हमें तैयार होने की आवश्यकता है कि जब दूल्हा आएगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। डरने की आवश्यकता है। बहुत से लोग डराते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम डरने की बात नहीं है। इट इज़ नॉट द रीजन, द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड इज नॉट द रीजन फॉर मी टू बी एप्रीहेंसिव, टू बिकम पैनिक। जी नहीं, हमें खुश होने की आवश्यकता है, आनंदित होने की आवश्यकता है। को आने वाला है कि हमें लेने यहाँ से। और बाइबल में लिखा है 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य में कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा और पृथ्वी पर वो नया यरूशलेम उतरेगा। ये वो जगह होगी जिसको नया कर देगा और उसके लोग प्रभु के साथ रहेंगे। ये सच्चाई है। इसलिए यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Therefore is neither Jews nor Greek, there is neither slave or free, there is no male or female, for you are all one in Christ Jesus, and if you are in Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. ये जो प्रतिज्ञा है और नई वाचा है वो महत्वपूर्ण है। नई वाचा कहता है हम परमेश्वर के परिवार में आते हैं और उसके उस प्रतिज्ञा के कारण हम उसके साथ संगी वारिस बन जाते। वी बिकम द जॉइंट एयर्स ऑफ ऑल दैट ही इज एंड ही हैज। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मैथोडिस्ट चर्च के अंदर और बाकी तमाम कलीसियाओं के अंदर हम इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यहाँ जो दुनिया के अंदर हमारे पास पोजीशंस हैं वो ठीक है, टेम्पररी है, लेकिन एक ऐसा पोजीशन भी है, एक ऐसा मिराज भी है, ऐसी मिराज जो है जो प्रभु देने के लिए हमें तैयार कर रहा है। और उसके लिए यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना के 14 अध्याय के पहले दूसरे अध्याय में कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पैंडेमिक के समय हम बहुत व्याकुल है, चिंतित है ये, क्योंकि ये शरीर हमारी इस संसार में है और हम चिंतित हैं और बहुत कुछ हमारा यहाँ पर हमसे तो ये बिलोंगिंग, लेकिन ये बिलोंगिंग्स हमारे लिए टेम्पररी है। तो उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास कर, तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि मेरे पिता के पास तुम्हारे रहने के बहुत से स्थान हैं। अगर यीशु ने कहा ये तो वो है। हमें चिंता करने की और डाउट की आवश्यकता नहीं। वी नीड नॉट टू बी सस्पेक्टिंग दिस, इट इज देयर 101% राइट, एंड देयरफॉर वी नीड टू बी हैप्पी कि जीसस इज कमिंग बैक। हमें खुश होने की आवश्यकता है, वो आ रहा है। मित्रों, आज हम ये रुक जाएंगे। मेरी प्रार्थना आपसे कि इन वचनों पर आप ध्यान दीजिए। आज हमने बहुत सी बातों का अध्ययन करा वाचा के बारे में, और इन वाचाओं के बारे में हमने देखा 7 प्रकार की वाचाएं। प्रभु करे कि इन वाचाओं के अर्थ को जाने। ये वाचाओं के माध्यम है, लेकिन परमेश्वर एक है जिसने प्रतिज्ञा दी है, और वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरी होती है। और आप पर हम धन्य हैं अगर हमने उसको अपने जीवन में स्वीकार अगर नहीं करा है, तो आज मौका है कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, मुझे स्वीकार करें ताकि मेरा नाम वहाँ पाया जाए प्रभु जहाँ पर आप रहते हैं। आपका निवास मेरा निवास होगा प्रभु, आपके लोग मेरे लोग होंगे प्रभु, और वो कलीसिया के लोग हैं, उसके राज्य के लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के भी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। चाहते प्रभु कि इन बातों को गहराई से जाने और इसमें हम बढ़ते चले जाएं। हे प्रभु, जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु ये वचन लिख दिए जाए प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ सकें और
हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु फलवंत हो जाए, और उस जीवन में जो आपका है प्रभु, जो मेरा जीवन है प्रभु, जिसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। Dear friends, we have some announcement to make, and I have a few things to share with you. As I've been always saying that this Bible study will continue. This is the daily Bible study. We start at 7:30 till about quarter hour, sometime 1 hour also. And you are most welcome, cordially welcome to participate, and also invite your friends to participate in this Bible study, and I hope that they will be blessed. मित्रों, ये बाइबल स्टडी हमारा जो है हमारे चर्च का, एपिसल में चर्च का, ये रोज़ की जाती है और वीकडेज में मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें अवश्य भाग लें और अपने मित्रों को बुलाएं, प्रेयर पार्टनर्स को इसमें बुलाएं। दूसरी बात, मैं चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं लिंक के द्वारा। हर संडे को शाम को 5 बजे हमारा संडे स्कूल होता है लिंक के द्वारा। उसमें हमारे बच्चे भाग लें और बच्चों को आप बुलाइए जी, आस के पास रहते हैं, अगर वो बैठ सके उनको बोलिए। अगर उनके घर में व्यवस्था है मोबाइल का या टीवी का जो भी है, तो लिंक के द्वारा इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एमवाइफ के बच्चे भी हर संडे को दोपहर को 2 बजे से अपनी मीटिंग करते हैं जूम के द्वारा। मैं चाहूँगा कि आप इसमें भाग ले जरा, जितने हमारे एमवाइफ के बच्चे हैं। और भाई उत्कर्ष हमारे यूथ प्रेसिडेंट हैं एमवाइफ के, उनसे संपर्क कीजिएगा। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हमारी बहनें जो WCS की हैं, हर सेकंड सैटरडे को उनकी मीटिंग होती है दोपहर शाम को 4 बजे जूम के द्वारा। तो आप इसमें भाग लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मिसेस विनीता विल्सन से संपर्क करें, आपकी मदद और वो सहायता करेंगी। मित्रों, इन दिनों में पेंडेमिक की वजह से और कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा कई जगह लोग परेशान हैं। पर गुड न्यूज़ ये भी है कि बहुत से लोग दिल्ली में ठीक हो रहे हैं और बाकी जगह ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि हम इसको हल्के में लें, हम इसे सीरियसली लें और सावधान रहें। जब आप बाहर जाते हैं तब मास्क का इस्तेमाल करें, उसको पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें। और ख़ासकर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं 65 एंड प्लस, उससे ऊपर, उनका हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखें कि वो किसी प्रकार से इन सब चीज़ों के वो एक्सपोज ना हो कि उनको ये तकलीफ़ हो जाए। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनको याद रखें और उनके लिए हम सावधान रहें कि वो भी बाहर इधर उधर ना घूमें, खास करके वो बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है बच्चों के लिए बताया गया और बुजुर्गों के लिए बताया गया क्योंकि उनकी जो इम्यूनेशन ताकत कम होती है और तुरंत उनके शरीर में आ सकती है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे हर एक मंत्रियों के लिए, हमारे MPs MLAs के लिए, हर एक IAS IPS ऑफिसर्स के लिए, हमारी पुलिस के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे सेना के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनमें सारी की सहायता करें ताकि जो कार्य वो करते हैं उसके लोग सहयोग करें और उनके प्रयास से हमारे देश में शांति बनी रहे और तरक्की होती रहे। जो भी हमारे देश में समस्याएं प्रभु जानता है, आप भी जानते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम सहयोग करें एक दूसरे के साथ ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। इसमें बहुत से लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, नौकरियां चली गई या आधी तनख्वाह मिल रही। अगर आप किसी को मिलते हैं या कोई आपके पास आते हैं तो आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। और कलीसिया रूप से भी हम ऐसा करते हैं जिनकी मदद कर सकें। हम धन्यवाद देंगे हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हम धन्यवाद देंगे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे हर एक बिशप्स के लिए, खासकर हमारे बिशप सुब्रत सिंह मंडल साहिब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए और तमाम MCI के बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे हर एक MCI के रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के लिए प्रार्थना करें और खासकर DRC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास और हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार
हम प्रार्थना करें हर एक DSS के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे WCS के बहनों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए, MMF के भाइयों के लिए, कि प्रभु हमारी मदद करें। और इन कठिन दिनों में जबकि हम अपने घरों में हैं, हम एक दूसरे से प्रार्थना करें और प्रभु के गली से प्रभु में आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद दें इन दिनों के लिए जबकि हम बाइबल स्टडी में हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अपने मित्रों को बुलाइए और उनको ये लिंक भेजिए, आप स्वतंत्र है भेजने के लिए। हम इस बाइबल स्टडी में उन्हीं बातों का वर्णन करते हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है, इसलिए आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सुने और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के वचन से अपने जीवन को आलोकित करें। आइए हम प्रार्थना करें, इस बाइबल स्टडी को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत करी। We thank you, Lord, that today you have spoken to us through your word. We pray, O God, all the knowledge that you have accumulated today may continue to grow in our lives, and this may create light in our spirit and soul so that we may grow in you, Lord, day by day. We especially pray for our church, Apostle Methodist Church, our English congregation, Hindi congregation, and Nepali congregation. Lord, thou bless this congregation. Bless this church, and we pray for the others who are worshipping here, Lord. We pray for these 4 congregations. Lord, thou bless them also. Lord, thou provide their needs even nowadays when they are not able to worship here in this century, Lord, because of the lockdown. We pray, Lord, thou to provide them proper place so they may worship you, Lord, and through their lives your name is exalted and is glorified. Pray, Lord, for our church leaders, our pastors, our DSS, and everyone, Lord, who are responsible, our bishop, his wife, madam, and all the people who are connected with the church. Lord, let your grace be upon all of us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. As we conclude this Bible study, let your grace be with us, Lord. Give us good night rest. And if this is your holy will, Lord, help us to see another day so that we may glorify and magnify your name. प्रभु धन्यवाद देते कि आपने प्रार्थना सुनी। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की हिफाजत और शराकत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, प्रभु यीशु ही प्रभु है। वो आपकी सहायता करें, आपको संभालें और उसी की तरह हम देखते रहें और उसके द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा में आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है जिसने हमें जीवन दिया है। उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।